Because I am not a believer that I have been given a task by somebody to be able to fit this society. My job is to make the best use of the time Allah has given to me. And I have surrendered myself to the truth of life. Now, from this point onward, when I have been given this opportunity to stand here, I am responsible for this time that Allah has given to me. Whereas when I was not here, I thought that maybe Allah did not like me to go there. I don't know how. So I thought I was okay. But then there is some kind of diary, to be very honest, I don't really know when I'm going to be out of this situation. But if you are flexible, I will make sure that I will come over anytime. Alhamdulillah, that moment has also happened. The second objective of this lecture is that you can pick up some clues and hypotheses which I have developed personally and which I often tested during my practice. And being the researcher, being the scholar in your own area of specialization, you can maybe start doing research on that and try to bring it under some theoretical framework which I as a practitioner can do. So maybe the time has come when the practitioners and the theorists, they have to, come close to each other. So after you how can you motivate yourself, and after you will know how to motivate others based on the principle or based on the guideline which I will be sharing with you. And then at the top, I would like to take a few questions. Which one? And also I will leave a small article which I have written about 9 years back. I'm sorry, I was wrong 3 years, but 6 years back it was published. This article, and I will leave a copy of this article for your library, and then you can get copies and distribute who are interested in that. Its title is Motivating People to Practice Through Ages. My talk is basically based on this same article, and it will give you a summary of that. Now, if you compare the life, well, first of all, what do you mean by the quality of the life? This is the question which you should ask me. Quality of the life. Quality of life or quality of work? Okay, quality of life at work. To enjoy each and every moment of life. Okay. But quality of the life can be basically, right now I'm talking about what has changed. Let's first try to assess what has changed in the last 10-15 years. For those teachers who've been working in this university, if you start comparing yourself, the facilities which you have been given today with the facilities which you were given 20 years back, how would you compare? There are no facilities. There are no facilities. So, okay, अगर आपके देखना शुरू करते हैं, the facilities are like, look at the gadgets which we are using now. ये गैजेट्स देखें, ये मल्टीमीडिया देखें, ये जमाने, ये लाइटें, ये बिजलियां, ये कुर्सियां, हम लोग तो टॉप पे बैठ के करे थे। हमारे जमाने में तो I went to Central Model School and most of the time the classes used to be under a tree, open sky. उस वक्त हम ऐसे पढ़ते थे। आज बच्चों की तरह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें, कि क्वालिटी ऑफ फैकल्टी इवन देखें। जो आपको फैसिलिटीज हैं, हमारे जो वालिदैन थे वो बेचारे साइकिलों पे 40-40 मील घोड़ों पे सफर करके अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचते थे या किसी इदारे में पहुंचते थे। आप जिस तरीके से आते हैं 10 मिनट के अंदर, चाहे बहुत रश है लेकिन आप लोग आराम से पहुंच जाते हैं। फिर क्लासरूम, अगर आप इफ यू आर लकी एनफ टू बी अ पार्ट ऑफ बी अ स्टूडेंट इन अ प्राइवेट स्कूल, तो अगर आप ICMS में चले जाए तो क्लासरूम में जनाब एक डिस्टेंस लगे हुए, बड़ा लग्जरी। एसोसिएट प्रोफेसर बेचारों को हमारे जमाने में डिपार्टमेंट हेड पे नहीं मिले होते। यहाँ पे स्टूडेंट्स जनाब है, पोजिशन से बैठे हैं, नीचे कारपेट्स हैं और बाद जो क्वालिटी की टाइल्स लगी है वैसे लगी है जैसे किसी आप 5 होटल्स में आ जाते हैं। दिस इज अ जनरल क्राइटेरिया। सो बेसिकली फैसिलिटीज है ट्रेमेंडसली इंप्रूव्ड। चले फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई हैं, व्हाट एल्स हैज इंप्रूव्ड? इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। The information which is available today, एक जमाना था कि until unless you came to the library and you sat there for hours, it was so difficult to retrieve the information, for even the research, for the basic research. You were dependent on buying books, what maybe hundreds of rupees, but वो 100 rupees भी नहीं होते थे। यार where would I go? और बेचारे यूनिवर्सिटियों के पास इतने फंड नहीं होते थे कि उनको नई बुक्स जो सी आ सकें।
कि जी हार्वर्ड के रसाले आप सब्सक्राइब कर सकें, but those facilities are available. You can continue sitting at home and you have the access to the world's best literature. तो वो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन भी आपके सामने है. Means of communication have tremendously improved. Now इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है and then communication. Tremendously, everybody would have a cell phone in his hand. हर एक के पास फोन पकड़ा होता है. तो वो इम्प्रूव हो चुके हैं. चले इतना काफी है. अब आप देखिए what has the change. अगर आप स्टाफ की सैलरीज पे आ गए, सैलरीज भी इंक्रीज हो चुकी हैं. पब्लिक सेक्टर में the percentage increase is not as high as in the private sector. However, जो आजकल इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं, बाद में आपने वर्ल्ड बैंक की प्रपोजल भी शायद जिसकी थोड़ी सी समरी आएगी पढ़ ली हो, कि जो नंबर 1 टीचर्स की सैलरी इज गोइंग टू बिकम इक्वलेंट विद द प्रैक्टिशनर. नंबर 2, the salaries in the private and the public sector are going to come almost the same band with the maximum difference of 15%, which is the worldwide practice. तो इसका मतलब है कि जो असिस्टेंट आपका जो लेक्चरर है, असिस्टेंट लेक्चरर 7th ग्रेड में, उसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से शुरू होगी. Now proposal ये 95 से अप्रूव पड़ी है, अब उसको दोबारा निकाल लिया गया. It might take maybe 4 more years by the time they can fully implement it, but that is coming out. वो होने वाला है. तो सैलरी हैंड इन हैंड. एक जमाने में हर 100 लोगों के पास 0.2 गाड़ी हुआ करती थी. अब हर 100 लोगों के पास तकरीबन लास्ट सर्वे आया है 17 गाड़ियां हैं. तो 17 वर्सेस 0.2 की आप परसेंटेज मल्टीप्लाई कर लीजिए कि कितने टाइम्स बनती है. इसी तरीके से टेलीविजन देख लीजिए पर कैपिटा, वो भी बढ़ चुके हैं. तो ओवरऑल इवन एज द क्वालिटी ऑफ लाइफ फैसिलिटी स्पेशली एट होम आर आल्सो इंप्रूव्ड. सो फैसिलिटीज हैं एट होम. ओके, चले इससे यहीं से शुरू हाइपोथेसिस यहीं से करते हैं. क्यूरियस यूनिवर्स कितना में पढ़ी हुई है? क्यूरियस आपने पढ़ी. ओके, आपने भी पढ़ी. तो क्यूरियस से व्हाट 60s में कि people inherently they dislike work and they need to be treated like animals and they have to be guided and they will not miss out on any opportunity to start doing the work which they will give until unless you enforce, until unless you use the power. Now उसके बाद थ्योरी बाई भी आपने देख ली. आजकल के दौर में एक जमाना था जबकि लोगों को ट्रीट किया जाता था, इस हजारे में भी आप देख लीजिए किसी और तरीके से ट्रीट किया जाता था. आजकल तो हमारे जमाने में भी हम जब बच्चे थे हमें क्यों नहीं ये लेवल आते ही नहीं थे. ये हमने कभी सुना भी नहीं था कि मूड क्या चीज होती है. आजकल तो इतना बच्चा कहता मम्मी मूड नहीं है. ये मूड कहां पे आ गया? सो आज ये आपको टॉकिंग अबाउट यू कैन स्टार्ट लुकिंग अराउंड एंड सी व्हाट इज हैपनिंग. बच्चे आजकल माँ बाप बेचारे दे गो क्रेजी ट्राइंग टू कन्विंस देयर ऑफस्प्रिंग्स जिनको उन्होंने पैदा किया है बेटा नहीं दिस इज नॉट द राइट वे. तो इसका मतलब ये है कि people have been realized as emotional beings, so awareness than what it used to be. पहले कहते थे बच्चे की क्या इज्जत है, माँ बच्चे को 2 डाल के रात के कपड़े लेके आती थी, वो बना देती थी. आजकल का बच्चा कहता है यार तुम तो और बेटी हो, मैं अपने कपड़े खुद खरीदूंगा. तो बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट है. माँ बाप बच्चों के कमरे में जब तक करता है घुस जाते थे. आजकल माँ बाप बच्चों के कमरे में बेकार ना घुसने उसको आगे के कहते एक्सक्यूज मी व्हाट इज दिस, what are you doing? You did not ask me. तो इसका मतलब ये है एक जमाने में आप अपने घरों में इतने छोटे टाइम में इस टॉपिक को कहना मुश्किल है, लेकिन इससे पहले कि you either accept or reject it, please do undertake a self study, self research. अपना ताकि वो फिक्र करो, अपना इनका करो, देखें and your experience will tell you about the credibility of what I am talking about here. माए अपने माँ बाप से के जमाने में अपनी दादी को विजुलाइज करें. अगर आपने देखा है अपनी माँ को विजुलाइज करें, वो एक गांव में शादी करके जाती थी.
और वो सारा दिन उस घर में रहती थी। आज की बच्चियों की शादी होती है तो खामन 4 दिन उनको बाजार ना लेके जाए तो 5 दिन में लड़ाई हो जाती है। क्या हाउ डू यू ट्रीट मी? घर में टेलीविजन भी है, सब कुछ है, क्योंकि आप उनके बाहर नहीं लेके जाते। सो देयर इज मच मोर रेकग्निशन। एक जमाने में बीवी मस्ट गो टू डू व्हाटएवर हस्बैंड इज टेलिंग। अब है वो उससे भी ज्यादा 10 मिनट कन्विंस करने की कोशिश करता है, नहीं ये ना खा ले, वो ना कर ले, ऐसा ना कर ले। तो वो सारे सबूत हैं इस चीज के कि देयर इज मच मोर अवेयरनेस about the human dignity than what it used to be, and realization of the basic human need, basic social needs, basic esteem needs. People 20 years ago, so they are not. So it means that these are related people. ये तो नहीं हुआ करती। So then what is the conclusion? So the conclusion is, जो मैंने ड्रॉ किया, जिस आर्टिकल मैंने शेयर किया, if I started evaluating these things carefully, and if you have read or gone through a hierarchy of needs by Abraham Maslow, and then if you start doing research, then you will know the answer. So answer is what? दूसरे लेवल पे तीसरे लेवल पे लव एसोसिएशन या बिलोंगिंग, चौथे पे एस्टीम, पांचवे पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। Now this is after very enlightened book where if I ask this question maybe to you after 5 years, if you are not basically in touch with what you have learned, तो अक्सर लोग भूल चुके हो, उनको थ्योरी याद नहीं होती। Why? Because maybe they did not, they could not relate it with their life. मैं आज आपको ऐसी थ्योरी पढ़ा देता हूँ जो कि आप सारी जिंदगी नहीं बोलेंगे। So that theory is my interpretation of Maslow based on Quran. आप भूलेंगे, अगर भूल गई तो आप मुझे जो मर्जी कह दीजिएगा। Okay, now the very first need, and I've seen it happening everywhere I've gone. I have hundreds of examples which I can give to share to strengthen my hypothesis and my theory. First thing is आपका पेट. So the peat is basically a metaphor for physical needs. एक आदमी जिसका पेट नहीं भरा हुआ, जो भूखा, उसको ना प्यार चाहिए, ना स्टीम चाहिए, उसको रोटी चाहिए। आप उसको गले लगा के चूमना शुरू कर देंगे, इज लीस्ट बॉदर। वो भूखा है, लेकिन जो ही उसका पेट भर गया, 2 रोटियां जब उसने खा ली, तो जब तीसरी रोटी आप उसके आगे फेंकेंगे ना, तो वो कहेगा साहब तब तो बहुत तमीज ना दो। इसका मतलब क्या हुआ? जो ही फिजिकल नीड्स भरी तो हाई लेवल की नीड्स क्या है? ये दिल अल्लाह ने ऊपर लगा दिया, पेट कितने से ऊपर दे रहा है, तो ये आपकी इमोशनल नीड्स जाग होती, जो ही फिजिकल नीड्स पूरी हुई। एक औरत जो घर में भूखी है, उसको अगर रोटी नहीं मिलती, उसे किसी काले चूड़े के साथ शादी करा देना गुजारी कर लेगी। जो ही पेट करता है, थोड़ी सी सेफ्टी की नीड पूरी होती है, देन शी विल स्टार्ट लुकिंग, मेरा काम मुझे प्यार नहीं करता, देहात नहीं करता, बदतमीजी करता है, वो बात की बातें आएंगी जो ही पेट भरेगा। सो ये 2 लेवल की नीड बॉडी है। ये बॉडी वो है क्योंकि एक कपड़ा हमें मिला, जो हम पैदा हुए हमें मिला, जब हम मरते हैं तो कब्र में दफना किया जाता है, ये वो है बॉडी। दिस इज वन साइड ऑफ अस, वन डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग व्हिच अल्लाह हैज क्रिएटेड। सो देयर आर फिजिकल नीड्स व्हिच अल्लाह हैज आस्क्ड अस रादर ऑर्डर्ड अस टू मीट। सो ये चीजें होगी, क्योंकि सेफ्टी अल्लाह इसलिए एड्रेस नहीं करता कि कुरान शरीफ में कहा हुआ है कि इसको आप भूल जाओ, दिस इज बिटवीन मी एंड माय बंदा, और आई विल टेल यू लेटर ऑन व्हाई अल्लाह हैज इग्नोर्ड दिस पार्ट, बिकॉज़ दिस पार्ट डज नॉट इवन एग्जिस्ट। ये लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज़ वहां पे सेफ्टी इज अ कंसर्न, टू अ रियल मोमेंट सेफ्टी इज नॉट अ कंसर्न।
Because throughout the Quran Allah is saying, तुम मर नहीं सकते और तुम्हारा रिस्क कोई भी नहीं दे सकता। तो हम उसके पीछे परेशान है, सेफ्टी के पीछे, जो कि अल्लाह ने अपना जिम्मेदारी रखी है। अल्लाह ताला का जवाब था, आपने अपने अंदर डाल दिया कि जी इस अंदर में मैं अकेला हूं, आई हैव टू मीट माय सेफ्टी नीड। अल्लाह कहता है नो, डू व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू टू डू एंड फॉरगेट अबाउट द सेफ्टी नीड बिकॉज़ दैट इज समथिंग व्हिच आई एम अश्योरिंग यू। That is why Allah has neglected, Allah has ignored, otherwise Allah is complete, the book is complete, then why would Allah ignore? If Allah can take care of all of them, which He has mentioned. You know, science क्या है? Social science and physical science है क्या? How do you define social science? How do you define physical science? Basically, it is an observation of a human being on the laws of nature. He may or may not be right. It is my own interpretation of what न्यूटन ने क्या दिया? ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर क्या था? चीज ऊपर से बहकर नीचे आएगी, नीचे क्या होता है? अच्छा तो चीजें रगड़ होगी, उसको उसने नाम दे दिया। सो जितनी साइंसेस है ये स्टडी ऑफ नेचर है या थिंग्स क्रिएटेड बाय नेचर है, उसकी स्टडी है। तो इसलिए मैस्लो की थ्योरी को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, यू विल हैव टू कंपेयर इट विद द बेंचमार्क। एंड व्हाट इज द बेंचमार्क? द लॉ ऑफ नेचर। जिसने ये दुनिया को, कायनात को बनाया, वही आपको बता सकता है कि मैग्नेटिक तो ये थ्योरी कैसे परखती है। तो ये लॉ ऑफ एसोसिएशन नीड है बॉडी एंड देन हार्ट, जिसका जिक्र कुरान में कल्ब है, जिसको अल्लाह कहता है कंट्रोल करता है। नो कंट्रोल व्हाटसोएवर ओवर माय फीलिंग एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ माय फीलिंग्स। बट द मोमेंट माय फीलिंग्स बिकम इमोशन, देन आई विल बी held responsible on that. I don't like you. I don't have to like everybody. Quran has never asked me to like everybody. कोई कंट्रोल नहीं। I like you. There is no absolute कि अल्लाह मुझे क्यों नहीं पूछता तू उसको क्यों ग्रहण करता था? हाँ, if I don't like you and that feelings become an emotion and start affecting my behavior towards you, that become an emotion and I'm going to be held accountable for that. So ये जो चीज है, ये हार्ट का काम है। जस्टिस कुरान में हजारों तरह के आपको इशारे दिए हो, इशारे समझो। ओके, सो एग्जाम्पल ये है, आप 300 टाइम्स एक लड़का है उसको नौकरी नहीं लगती, जब तक उसको नौकरी नहीं मिलेगी वो कभी शादी की बात नहीं करेगा। आप देखें, इस पर डेवलप करें या टेस्ट करें या फिर रिसर्च करें। जूनियर्स पर नौकरी मिलेगी, अम्मी मैं बहुत अकेला हूं, अम्मी मैं कहता हूं कि आपकी मदद के लिए आ जाए, तो अम्मी कहते हैं अच्छा नौकरी तय ना हो गई है, अब इसके अगले लेवल में नीड बेदार हो गई है। जब वो बेदार होती है तो जिस बीवी के लिए उसने पहले ये किया होता है, उसी बीवी को छोड़ के वो दुबई चला जाता है डेवलपमेंट के लिए, या अमेरिका पढ़ने चला जाता है, या पीएचडी का स्कॉलरशिप मिलता है, उसी बीवी को छोड़ के चला जाता है। तो क्या हुआ? इमोशनल नीड्स पूरी हुई तो इंटेलेक्चुअल नीड्स जाम हुई। I need to be recognized, I need to be appreciated, I need to leave a mark, need to be recognized as a good professional। और वो इंटेलेक्चुअल नीड्स बेदार हो जाती हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ की नीड्स बेदार हो जाती हैं, कुछ कर लो। एंड देन जिंदगी जब खत्म होने जाती है, जिंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं होती। बहुत बदकिस्मती लोग हो, मैं कहूंगा कि अल्लाह मेरे रियलाइज सब कुछ मिल जाता है, भागते रहते हैं पागलों की तरह। जब सब कुछ अचीव कर देते हैं, स्टिल देयर इज सम गैप, हैप्पीनेस इज मिसिंग। एंड देन दे रियलाइज कि वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वाज नेवर एड्रेस्ड, क्योंकि इन तीनों से ऊपर ये भी एक चीज है जो हमारी सही हकीकत है। और कुरान पाक में इतनी जगहों पर इसका जिक्र किया है कि जिसमें से कुछ 6 या 8 रेफरेंसेस मैंने इधर कोट किए हुए हैं। Even as an example are people who reject our science and orthodoxy है, which you truly are, that is your soul,
Because that was always alive and that stays always alive, even if you die. पुरानी बात बता रहा है कि दुनिया में जितने लोग पैदा होने थे सबको एक ही दफा उनकी सोल को क्रिएट कर दिया गया हुआ है। इसका मतलब एक बच्चा जो भी पैदा नहीं हुआ जिसने 100 साल बाद भी पैदा उसकी सोल भी पैदा हो चुकी है, उसको सिर्फ जिस्म दिया जाएगा। वो जिस्म उसकी हकीकत नहीं है क्योंकि वो कवर में आ जाएगी, वो कपड़े हैं निकाल के आगे डब कर दिए और जो असर था रूह निकल गई थी, वो उठी भी जिंदा। Pakistan and 20 years of experience, but this is the first lecture which got made. I don't know why, but what was under I never got led anywhere, and maybe it's one of the reasons we asked to check out the I got into a difficult situation at crisis. So, yes, it is not God who wants them. अल्लाह नहीं करता जो हमारी शरीर हकीकत है by the way they do so for their own souls and God is free of all needs and be ye not like those who forgot God and he made them forget their own souls. ऐसों में से मत हो जाना जो अल्लाह को भूल गए, और जो अल्लाह को भूल गए अल्लाह ने उनको उनकी रूहों को भुला दिया। और ये है हमारे मुआशरे का अक्स कि जिसके पीछे आप भाग रहे हैं वो हकीकत है ही नहीं, और जो हकीकत है दुनिया आपने अल्लाह से रिश्ता तोड़ा, आपने अपनी सोच को तोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, और यही उसकी सर्टिफिकेशन है कि अल्लाह कहता है मैं खुद उनकी रूहों को भुला दूंगा, जो कि उनकी ट्रू सेविंग है, जो कि उनकी ट्रू रियलिटी है। सो बेसिकली ये दैट्स according to Quran this completes our 4 dimension and that's how it relates with the theory of Abraham Maslow. Now, if you start analyzing all those things which we have written on the top, तो आपको नजर आता है कि इसमें फिजिकल नीड्स भी हैं, इसमें इमोशनल नीड्स भी हैं, और इसमें इंटेलेक्चुअल नीड्स भी पूरी हो रही है, और अगर एक चीज नहीं पूरी हो रही तो वो आपकी स्पिरिचुअल नीड्स पूरी नहीं हो रही। एंड दैट इज व्हाई when people clapping on me, if my motivation is based on anything which is not in my control, so then there is a limit. If my motivation is based on my wife loving me, then again I have no control over it. But if my motivation is coming from inside me, and that is the principle of Quran, and that is exactly what Islam has asked us to do. And that is the major difference between this society and the society of the West and America. You see so many people there who are better than us in almost all of these 3 things. Society, आप ordinary लोगों को analyze करना शुरू करते हैं, they are well mannered, well cultured, well behaved, soft spoken, they will never like to bulldoze on the rights of the kids. बच्चों को भी hey son can I come in, can I do that, बड़े प्यार से बात करते हैं। टीवी में आप देख रहे हैं हाय हनी हाय सनी, बड़े प्यार से दूसरे को बुलाते हैं, लेकिन they do it to get something as a result. That is conditional. And the moment you put a condition there, it means that the moment my wife abuses me, I will abuse back. Because then there is no external motivation left for me to continue doing and treating her well. कि मेरे बच्चे ने I am nice to my child because he is nice to me. जिसने उसने कहा बाप I don't know who you are, और he become difficult, I throw him out. तो ऐसे भाषणों की ये लिमिटेशंस हैं। हमारा माशरा कहता है if my son is not doing what he was supposed to be doing, he has to go in his own grave. I am not going to be inquired by Allah how good or bad my son was, how good or bad my wife was. So my relationship with that outer world is not based on the treatment of outer world or the behavior of the outer world to me. It is based on some other powers.
by the God, and I am very clear on that. So nobody can demotivate me because I know why I am doing whatever I am doing. It is a belief. Until unless we change the belief first, the behavior will never ever change. And that is where the limitation of psychology starts. Because the moment you want to get into the belief system, you have to bring the religion in, and the West will never like to do that because they have taken 200 years to take away that religion out of the system. How can they bring it back in now? Atheist society यहाँ तक तो पहुंच गए हैं हम ना चाहते हुए, पहले अपने सर पल की बेहदी को डायरेक्ट चेंज कर लें डंडे के जोर पे या लालच के जोर पे. नहीं सस्टेन चेंज आएगी तब स्टार्ट लुकिंग इनटू एटीट्यूड. दरख्त के ऊपर कीड़ा लगा हुआ है, कीड़े की वजह नीचे जड़ में है, आप ऊपर स्प्रे कर रहे हैं. हाउ लॉन्ग इज दैट गोना लास्ट? आप पत्ते काट दें, दोबारा पत्ते आएंगे, फिर कीड़ा लगेगा, क्योंकि कीड़ा तो जड़ में है. एक बच्चा बाहर थूकता है, पान फेंकता है, कूड़ा फेंकता है, इसके पीछे एक फंडामेंटल बिलीफ है उसका, आइदर कॉन्शियस चॉइस और कमिंग फ्रॉम अनकॉन्शियस सिलेक्शन. He has learned that belief. That is why he is doing that. आप बाप से हमने आपको करते हैं, there is a belief which is supporting that behavior, and the belief which you have maybe picked up from this dish or cable, watching Star World, wherein the friends they are talking or they are challenging the basic beliefs and the basic authority of their parents, but you have learned it. Maybe you are not even aware. Psychology says, just like a computer, you are not capable of doing something unless it exists somewhere in your subconscious. And they have done hundreds and hundreds of research studies to support it. For example, if a child is abusive, it is a learned behavior. तो वो बच्चा के बाद 10 साल के बाद वहां से उठा के सोसाइटी में लाते हैं, वो गाली उसने सुनी ही नहीं हुई तो उसको गाली आती ही नहीं. इसका मतलब ये हुआ that was a learned behavior. And luckily, something which you can learn, you can also unlearn. आपने एक बिहेवियर का आपने थप्पड़ किसी ने मारा, आपने खुद खींच के थप्पड़ मारा. No, I'm sorry. You are not supposed to be doing because you are not pre-programmed by Allah Subhanahu wa Ta'ala. एक जानवर is pre-programmed. He knows how to defend himself. And that is why he is holding me accountable for everything I am doing. If it was beyond my control, there was absolutely nothing I could be held accountable for. But it is मेरा प्यार है. तो अगर मैंने किसी को थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से बात देते हुए देखा ही नहीं है, तो मैं थप्पड़ मेरा हाथ उठ ही नहीं सकता. Believe it is not safe to talk about belief because the moment you touch the belief, then it means that you are basically hitting below a belt and you are wanting inviting cover because it is answer will come from the religion. बीवी का ट्रीटमेंट देख रहे क्यों वो ट्रीटमेंट था? बिलीफ क्या है? बिलीफ आपको क्रिश्चियनिटी का बिलीफ तो पता है कि हवा ने आदम अलैहिस्सलाम को निकलवाया जन्नत से. यू विल फाइंड द रीजन फॉर एवरी बिलीफ. कहां से इसकी हिस्ट्री क्या है? सर कहा बिकॉज वो का मतलब है ग्रीफ, sorrow, because woman became a grief and a sorrow for a man because he was the person जिसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया. इसलिए ये ग्रीफ है, इसलिए इसको अब ये बिलीव है उनका. That is why they have done those things to their wives which they do, and that is why they are not wanting to share their personal own property with their wives. ये तो मुसीबत है. तुमने काम करना है तो तुम भी करो. वो घर को भी शेयर करते हैं, खर्चा भी मिलकर चलाते हैं. उसके पीछे बिलीफ ये है. जब तक ये बिलीफ चेंज नहीं होगा,
बिहेवियर चेंज नहीं होगा। और मीडिया क्या कर रहा है, ये मीडिया हमारा बिलीफ बदल रहा है, हमें पता भी नहीं है। जब हम वो फिल्में देखते रहते हैं हमारे जमाने में किस्सा है, और जब हम बड़े होते हैं हम आप क्यों इतना 24 साल मैं उसके बाद की नस्ल हूं, तो मेरी और मेरी वाइफ की हिम्मत नहीं करती कि हम आपको तू कह रहे हैं। मेरी वाइफ भी कहती है आप, मैं उसे कहता हूं आप क्या कर रहे हैं, और आजकल की नस्ल को देखे तू, एंड दैट इज कंसीडर्ड अ वे ऑफ लविंग समवन, शोइंग कि हाउ क्लोज यू आर। ऐसों के बारे में फिर कुरान ने जो इतने नस्ल का जो बात की है सुनोगे फिर लाने वाली बात किया यार, यू डोंट इवन नो बिलीफ ये है कि यू आर इक्वल। इस कुरान ने इक्वल आपको एज ए ह्यूमन बीइंग कहा है, रिश्ते में इक्वल नहीं कहा। मैं और ये बराबर है इंसान, लेकिन ये मेरे उस्ताद हैं। अगर ये मेरे उस्ताद हैं तो मैं तो यहां नहीं उठा सकता, लेकिन वेस्ट में बराबर इक्वालिटी। व्हाट इक्वालिटी? इज इट इक्वालिटी? नो, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद इक्वालिटी। ये बिलीफ हमने सीखनी है स्टार वर्ल्ड देख के, स्टार प्लस देख के, और ये हमारे पता भी नहीं हमें चला, और इस पूरे मुआशरे की तबाही हो चुकी है बिकॉज बिलीफ बदल चुकी है। बिलीफ क्या है? तू जिंदगी गए की मकसद रोमांस करो। कुरान कहता है कि ये जिंदगी खेल तमाशे की जगह नहीं है, और इन्होंने हर चीज में एंटरटेनमेंट में डाल दिए, चाहे उसके पीछे 50 जाने चले जाएं। शादी हो रही है, फायरिंग करेंगे 15 बंदे मर जाए, लेकिन फायरिंग जरूर करिए, पता लगेगी 40 साल का शादी हो रही है पसंद। ये बिलीफ है। अब इस बिलीफ को बदलने के लिए जब तक बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि बेटे why it is okay for them to stay together without being married and why it is not okay for us to live together, ये इसकी जवाब क्या देंगे आप? इसका जवाब सिर्फ ये दे सकते हैं because our deen has asked us not to do। आप रिलीजन को बनाना नहीं चाहते, और हमारी रही से कसर की उस बात में पूरी करें। एनलाइटेंड इस्लाम, ये पता नहीं कौन सी किस्म नहीं आई है, इम्पोर्टेड किस्म। इस्लाम इज इस्लाम, लेकिन दे वांट टू फिट एवरीबॉडी। ये कहते हैं जो राशि है, जो रानी है, जो चोर है, उसको भी कहीं ना कहीं फिट तो करना है उस लाइन के अंदर। तो इस्लाम की इतनी लंबी लाइन कर दी है, स्केल ऑफ 1 to 100 एवरीबॉडी इज मुस्लिम। तो ये भी इस्लाम वाला है कि ही इज एनलाइटेंड, ये नमाज नहीं पढ़ता, 15 की गर्लफ्रेंड है, ही तो आपका मुसलमान एडवांस है। वो आइदर यू आर और यू आर नॉट, आइदर यू आर और यू आर नॉट, एंड इफ यू आर नॉट, कुरान ने जवाब दे दिया दैट हु यू आर। ये प्रॉब्लम आई है हमारे स्पिरिट ऑफ इबादत, एंड इज एब्सोल्युटली आई वेरी क्लियरली आई अंडरस्टैंड कि देयर आर इवन मोर बेंचमार्किंग इवन थ्रू आवर इस्लामिक वर्क। किस मुल्क को आप रोल मॉडल बनाएंगे? तो आपके सामने जो आ रहा है आप नहीं तो रोल मॉडल समझते हैं। सो बेसिकली ये जो बिलीफ्स हैं ये ड्राइव करते हैं एब्सोल्युटली वो चेंज, सस्टेन चेंज इन द बिहेवियर एंड चेंज इन द बिलीफ सिस्टम, नॉट कमिंग टू द मोटिवेशन। द बिलीफ मोटिवेशन द बिलीफ क्या, एंड व्हाट आर आवर स्पिरिचुअल नीड्स, इमोशनल नीड्स आवर बेसिकली फिजिकल। हमारी स्पिरिचुअल नीड्स क्या है? Closeness. सबसे पहले self discovery, who I am, where I came from, why I was sent, where do I go back, what am I supposed to be doing here? Would you like to know? एक बच्चा जिसको बड़ा हो जाए उसको पता है ना उसके माँ बाप कौन है। Would you like to know उसके माँ बाप कौन थे? Who was the creator? कभी आपने पैदा किया who was your creator and why he has created? तो सुनना लेकर जितने लोग उस एज में पहुंचते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, एवरीबॉडी वुड लाइक टू नो कि वो है कौन, स्पिरिचुअली गॉड क्या हो सकते हैं? क्लोजनेस टू गॉड।
whoever your God is. What else? Then there are 5-6 more. आप यहाँ तक मिल जाएंगी, लेकिन काफी to start us. ये है spiritual needs. प्लस अदर 3. लेकिन वो अदर 3 है, वो दूसरी कंपनियां भी शायद पूरी कर रही हैं. But the only difference was that I was giving them opportunity to talk about, to discuss, and to practice, and I was trying to bring a sustainable change in their belief system. Because the people who were working with me, they were spiritually becoming stronger, and also घर में problems होती हैं, झगड़ा हो गया. I was giving them the right interpretation based on Quranic guidelines. Happiness, forgiveness, contribution to the society. What do you get as a result? A lot of satisfaction, self-satisfaction. So the people who were with me, they were 100% fully satisfied, even though they were paid less. So they have spiritual needs. And how did I motivate them? Simple and simple. Quran क्या कहता है? Quran is calling us vicegerent, खलीफा, नाइब. हम आप सोचिए, हमारे से पहले there were several other creations of Allah, and they were doing their job perfectly. कुरान को मानता है कि परिंदे हैं तस्मियों पे तस्मियां, जानवर हैं, कहते हर कायनात की चीज उसके मुकर्रर मेयाद के मुताबिक और मुकर्रर क्वांटिटी के मुताबिक वो अल्लाह की प्रेज बयान कर रहे हैं. They cannot say no to Allah सुब्हानहू व तआला. परिंदे आज भी ये नहीं कह सकते कि अल्लाह मैं मगरिब की नमाज में लेट पढ़ूंगा, ये 7-2 वाला ड्रामा खत्म हो जाए. ये नहीं कह सकते. ये नहीं कह सकते अल्लाह ये तुम्हें पता नहीं 2000 साल पहले ये कहा था सुबह फजर की नमाज पढ़ो लो. अब तो लोग सोते भरे वगैरह. Now there is so much to do all night long. कहीं को पागल है ना मगरिब पढ़ के सो जाओ, ईशा पढ़ के सो जाओ. They still obey the Lord because they cannot say no. तो कुरान कहता है there are only 2 creations which can say no to Allah. और कुरान ने बता दिया कौन सी? जिन और इंसान. और किसी क्रिएशन के बारे में अल्लाह ने कुरान में यह नहीं कहा वो अच्छे हैं वो बुरे हैं, जबकि जिनों के बारे में नहीं कहते, इंसानों के बारे में नहीं कहते कि ये अच्छे भी हो सकते हैं, ये बुरे भी हो सकते हैं, इनकी आवाज को अच्छा या बुरा बनाएंगे. और ये गाली का इब्लीस के बारे में बता दिया कि वो फरिश्ता नहीं था, वो जिनों में से था, इसलिए उसने अल्लाह के आगे ना कर दी. तो ये 2 क्रिएशन है ना. इतने क्रिएशन हो अल्लाह के पास, बात अल्लाह क्रिएट ह्यूमन बीइंग्स, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को, और उसको खलीफा का नाम दे रहा है. जिन्हों को खलीफा नहीं कहा. तो खलीफा कौन है? अब आप मैडम से पूछे कि मैडम अगर इस डिपार्टमेंट की हेड है और मैडम एक डिप्टी हेड अपॉइंट करती है, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? Why would you like to appoint a deputy? To share the responsibility. That you come here and your job, primary is to help me. अपनी दुकान की चलानी तुमने. I am hiring you to obey the laws, to obey what I am telling you to do, to help me in my will, and as a result, you too will get blessed. ये उसके अलावा थ्योरी आती है भाई. अगर आप कोई मैनेजर है, आपको डिप्टी मैनेजर चाहिए, whoever you are, एक मैकेनिक बात लगा हुआ है, छोटे में रख लो, ये ही करेगा, गड्ढा दे देगा, वो साइकिल वाला भ्रमण करा होगा, मैं अपने डिप्टी रखना, वो भी यही करेगा. एक पेंट वाला कहता है मैं स्वेटर में खा लिया, नीचे बना लिया करो. तो पर्पस इज सेम. दैट इज व्हाई a knight is appointed to help, number 1, in fulfilling the objective. This is the primary objective.
अब अगर वो नायब तनख्वाह मेरे से लेता हो और काम अपना शुरू कर दे, उसके बारे में मैडम से पूछे कैसा बेटी जो तनख्वाह इनसे लेता हो और काम वो किसी और कॉलेज में पढ़ाता है, तो ना आप कितनी देर तक उसको रखेंगे? अगर मिस्टर साहब ना भेजा हो देख सकता है जिसे कोई बिना समझता है, हमारों सजदों से देता है नजर। भाई आपको सोचे, चलिए आप ये कहें अगर आप उसको रेडीमेड लीजिए भाई, अगर आप अपनी जेब से उसको तनख्वाह देते हो तो आप ऐसे नायब को कितनी देर रख सकते हैं जो कि जिस काम के लिए रखा गया है उस काम को पूरा ना करता? जी एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह का हौसला देखें, अल्लाह का हौसला देखें कि ये नायब काम करना तो कुजा, इसको तो ये भी नहीं पता कि काम खा ही कोई। मुझे पता है मैंने क्या करना है, मैं कर नहीं सकता एक लगातार। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कोई काम भी था। कुरान कहता है इनको तो ये डू यू थिंक दैट आई सेंट यू पर्पस, क्या तुम समझते हो कि तुम्हें बिला मकसद बनाया है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता मकसद क्या है। तुम्हें कंपनी में रख दिया गया, तुम तनख्वाह ले रहे हो, सब कुछ हो रहा है, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें 24 साल क्या एवरेज एज होगी यहाँ पे, 25 साल 28 साल की उम्र हो चुकी है, 28 साल से कंपनी से आप तनख्वाह ले रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कंपनी ने आपको उठा लिया। अल्लाह का हौसला देखें। और रसूल में आपको मैंडेट बता रहा है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर अल्लाह ताला ने रसूल में बयान कर दिया, वला सकना इंसान एवरीबॉडी इज अ लूजर, एवरीबॉडी वाहस मां सवाए इल्लल्लाजीना मां सवाए इल्लल्लाजीना आमनू, मां सवाए लोग के जो ईमान लाए। पर ईमान का जरूरी क्यों है वो मैंने आपको बता दिया है। मेरा ईमान नहीं होगा कि मैं ये क्यों करता हूं। जो अच्छे अच्छे लोग गुजरे हैं, चाहे वो नॉन मुसलमान थे, बट दे वर द ट्रू बिलीवर ऑफ अल्लाह। मदर टेरेसा जैसे बिलीवर ऑफ अल्लाह, अच्छा था ईमान, उनको पता था वो कहां से आए, उनको पता था उन्हें कहां जाना है। तो अगर जिसको जो अल्लाह को नहीं मानता या प्रैक्टिस नहीं करता या अपना नंबर 1 नहीं मानता, ईमान नहीं है, तो साथ में उसका बिहेवियर करप्ट हो रहा। उसको इस सवाल का जवाब नहीं है कि जब इसने मुझे थप्पड़ मार दिया, जब इसने मेरे साथ जुल्म कर दिया, तो मैं इसके साथ जुल्म क्यों ना करूं? वो जवाब क्यों ना करूं तो उसने तुम्हारे साथ किया, उससे अब सिर्फ ईमान देता है कि हाँ मैं बदला ले सकता हूं, लेकिन साथ ही जहां पे बदले की आयत है उसके आगे अल्लाह ने कह दिया है माफ कर, हाँ ले सकते हो, लेकिन एहसान अदब, लेकिन एहसान अदब क्या है? आप किसी ने तोड़ दो, बट अल्लाह एहसान करने वालों को कुछ करंट अकाउंट पे ना चलो। 10,000 रुपये कमाया, 10,000 रुपये बैंक से निकाल लिया, कुछ सेव भी कर दो तो पूरे वक्त में काम आएगा। अब वो जो सेविंग है वो है एहसान, वो है सेविंग अकाउंट, कुछ डालिएगा पूरे वक्त के लिए बैंक में, नहीं तो खाली होगा 0 रुपया को बैलेंस चलेगा। वो है दीना कमान, वो आनंद साल है। देखें इसका सीक्वेंस बराबर फरमाइए, ईमान के बाद अमाल आते हैं, पहले नहीं है। ईमान पहले फिर अमाल, क्योंकि आपको बता दें नेका में कर लिए काफी नहीं है। वह तबाह बिलहक क्या है मतलब क्या? नेक काम करो, जरूर करो, लेकिन इसको भी अल्लाह ताला को नजदीक नहीं रखता है, अल्लाह ताला इसको गरीब समझता है कि सिर्फ अपने ऊपर ना बैठे हो, लालची से ना रहो, अपने ही बैंक अकाउंट के सेविंग अकाउंट जमा करते रहो।
जैसे तुम्हारी जिंदगी बदली दूसरों की भी बदलते रहो। वो तो वास्तव में हक सच्ची बात भी करते रहो, लोगों को बदलते रहो, सच व्याप्त करते रहो, क्योंकि ये सदका जारिया है उस इल्म का जो अल्लाह ने आपको दिया। हमारी आदत ये है कि एक चूल्ही हम बनाते हैं, किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि शायद वो चुनौती हमारे पास होती है। जबकि मेरी एक लर्निंग की थ्योरी है, द मोर यू गिव अवे द मोर यू विल हैव। मेरी कई थ्योरियां ऐसी हैं जिसके ऊपर किताबें लोगों ने मोटी मोटी डाल छोड़ी हुई है, लेकिन मुझे जो बात कह रहा था मुझे पता मुझे क्या हो रहा है। थ्योरी उसने लिखी, किताब उसकी है, लेकिन क़यामत तक उस थ्योरी के पीछे इंस्ट्रूमेंटल एक थॉट वाले को उसका अजर मिलता रहेगा। तो मेरी सोच तो क्या असर पड़ता है कि आप अपने नाम से छाप लीजिएगा। यू कैन टेक अवे बट यू कैन नॉट टेक अवे व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड फ्रॉम अल्लाह। इसलिए मैं तवासौ बिल हक दो। The more you will give away, the more you will have. The more knowledge you require, the more you have to give away. And the तवासौ बिल सब्र, क्योंकि जब हक बात की तलकीन करोगे तो शायद जूते भी पड़े। शायद इतनी जल्दी लोग मानेंगे ना, थक ना जाना कि दो बार बीवी को बच्चों को बाप को समझाओ, फिर कहो कि बस मैं 2 बार ट्राई कर लिया, मैं भूल जाती है, नहीं बदल सकता। अपना काम किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ, अच्छे से अच्छे अल्फाज में बयान किए जाओ सच को, और सब्र करते रहो, करते रहो, करते रहो, साबित कदम रहो, कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, पत्थर के ऊपर कतरा फेंकते रहो, फेंकते रहो, फेंकते रहो, सब्र करते रहो, बस ये है आपका मैंडेट। अब जिसको ये पता है, अच्छा अब इससे पहले इस सवाल में मुझे का सवाल पूछता हूं। अब मैडम ने रखा अपने डिप्टी को, क्या वो डिप्टी वो काम कर सकता है अगर मैडम उसको 2 चीजों की गारंटी न दे? एक चीज तो ये कि उसको महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी, और दूसरी चीज ये कि उसकी जान को खतरा नहीं। जवाब दीजिए। नहीं करेगा ना, आपको घर का मुलाजिम भी नहीं करेगा अगर उसको 2 चीजों की श्योरिटी ना हो। तो आपके ख्याल में अल्लाह जो सबसे बड़ा मुख्तियार है, अल्लाह जिसने आपको बनाया है और जिसने आपको बना के जिसने आपको स्टडी किया है, आप उसकी थ्योरी में तो बिलीव करती है, पर जिसने आपको बनाया है आप उसकी थ्योरी को बिलीव नहीं करती। उसकी थ्योरी क्या है? की थ्योरी कि सेफ्टी नीड पाला है और तुम्हारी जिंदगी का प्यार मेरे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। ताकि तुम आंखें बंद करके काम करो, तुम्हें डर हो जाओ, क्योंकि काम आपने अल्लाह ने सौंपा हो, तनख्वाह आपको मिनिस्टर साहब देते हो, फिर डाला है तो अल्लाह ने सारे देखो कि ये तुमसे पहले लोग गुजरे, इनको कौन देता था, इन जानवरों को कौन देता है, परिंदों को कौन देता है। तो अभी मैं कुछ साल पहले बीबीसी के अंदर मैंने, बीबीसी में नहीं, ये एनिमल प्लैनेट था या डिस्कवरी में देखा, एक मेंढक पत्थर का गार, उसका मुंह इतना सा था और मेंढक का साइज इतना बड़ा। तो कई बच्चे शायद उसमें सही कारण थे, नीचे तो उनको कोई बात नहीं रहे मेंढक की, तो उन्होंने क्यूरियोसिटी से देखना शुरू किया और पीछे अंदर कुछ गिरा हुआ। तो फिर वो कैमरे सामने, आप होता वो तहकीक तो बहुत करते हैं, वो कैमरे सामने लेके उन्होंने जनाब रोड में अंदर डाल के कैमरे को देखे क्या मेंढक है। अब उसमें डिबेट हो गई थी तो काफी लंबा 15 मिनट का प्रोग्राम था उस पर कि ये मेंढक आगे गिरा कैसे, क्योंकि 5 महीने पहले जब मेंढक का साइज इतना सा था बच्चा, ये फुदक के नीचे गिर गया। अब 5 महीने से ये इसी सुराख में नीचे गाल में बैठा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि 5 महीने से उस मेंढक के बच्चे को खाना कौन खिलाता था? आप खिलाते थे, मैं खिलाता था। ये है उस कुरान की आयत का मामला।
अगर वो खुदा, वो अल्लाह, वो नहीं बोला उस मेंढक के बच्चे को खाना देना, रिस्क देना, तो एक 6 फुट का इंसान को। सो बेसिकली स्पिरिचुअल नीड्स ये है, यू आर लाइटेड कि माय डियर यू डिसएम्पावर योरसेल्फ। अपने लोगों से कहो, ओह इट इज नॉट मी हु कैन गिव यू एनीथिंग। इंसान पे रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकता, छीन ले उसका वास्ते रखो। उन बच्चों को बताएं, माय डियर योर जॉब इज टू डू द बेस्ट टू योर एबिलिटी। ये अल्लाह की जिंदगी का मकसद है। हाँ, इस मकसद को पूरा करने के लिए आप टीचर बन गए, मैं कंसल्टेंट बन गया, आप में से कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई मैकेनिक बन जाता है, कोई कुछ और बन जाता है, कोई पेंट करने। एवरीबॉडी इज डूइंग इट डिफरेंटली, बट द पर्पस इज सेम, सर्व द ह्यूमैनिटी। You would like to serve the humanity by becoming a teacher, by becoming a mechanic. A part of it will come back to you. The more you need for yourself, the more you have to give away to the society. This is a simple law of Allah. 1 2 70 मिलेगा, 70 का 200 मिलेगा, लेकिन वो फेथ ही नहीं, क्योंकि कुरान पढ़ा नहीं, ना पढ़ने लेकर पढ़ा, ना जिंदगी का मकसद पता है। तो परेशान है उस चीज पे जो कि हमारी परेशानी है। नहीं तो मैं परेशान हूं कि इतनी दुनिया की बातें बढ़ रही है, मेरा बनाना खत्म होने लग पड़ा है। अल्लाह मेरे जान नहीं है जिसने गारंटी दे दिया आपको, जनाब चाहे मिसाइल बन जाए, चाहे एटम बम बन जाए, चाहे न्यूक्लियर बम बन जाए, तुम्हारी मौत नहीं आ सकती जब तक ये नहीं होगा। और जिस दिन होगा ये 3 कार्य आगे जा रही है, क्योंकि और फिक्र करोगे कि जॉब भी मिल जाएगा कि आज तक सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को बचाया मारे। तो अफसोस कोई नया खड़ा हुआ है, जब बम फटा हुआ, बस मेरे बच्चे ने मेरी बीवी ने मुझे बचा दिया। ओह क्या बात है, मेरी बीवी बड़ी किस्मत आ गई। क्यों? मैं भी खड़ा हुआ जब बम फटा, उसने भी मुझे बात मारी, क्या कहता चला कहता है कि अभी कोई आई नहीं थी, जिस दिन आएगी यही बीवी जाके तब आएगी, वो भी कहते अभी आएगी। खुदा का शुक्र अदा करने की टाइम भी नहीं शुरू हो जाए। ओह क्या बात है मेरे गांव में, ओह और इसमें गाड़े को मुकाबले करके काम है। भाई अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसका भी बोलती है, अगर उसका हिदायत है शुक्र पता नहीं। तो मैंने तो कैसे आ गया, कहते मुझे मिलाया तो पुरानी भी लिखा है, उसके ऊपर लिखा होता है टू हूम इट मे करना। तो हम मिलाया वो भक्तियों के बाद ऐसे मिलाइल है टू हूम इट मे करना। दिस इज द काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग। देन फॉर देयर आर एवरीथिंग दैट दे व्हिच वी आर स्टिल लिविंग, वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र कि आज शाम को घर पहुंच गए, अल्लाह तेरा शुक्र। लेकिन ये शुक्र तो बहुत आगे है जिसको ये पता है कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उसकी रजा के बगैर, जैसे तो जब सब कुछ ये पता है then live like a man, then you have no worries left। और by the way, अगर ये वर्ष आपको ना दी जाए तो फिर जो सोसाइटी वो चाहते हैं बनाना वो बन नहीं सकती, बिकॉज दे कंट्रोल करेंगे मेरी जॉब इसलिए आप नहीं लगा, प्लीज खुदा के वास्ते इस डिजाइन करें नहीं करते, जिसमें आएगा उसे वो भी करते। आई डोंट थिंक एवरीबॉडी कंट्रोल्स माय डेस्टिनी और माय लिविंग। एक रास्ता बात होता है 50 बार, लेकिन उसका रिवॉर्ड करेंगे तो उसको पता चलेगा कि आप कुर्बानी देंगे। फिर आपको पता हो सकता है कि ये मौका हो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो किसी ऐसी जगह पे जहां पे अल्लाह आपको इशारा दे रहा हो कि नहीं तुम्हारा रिस्क मैंने इस्लामी तारीफ जाओ से बंद कर दिया, खुदा के रास्ते तुम यहाँ से निकाले जाओ ताकि तुम अल्लाह के आगे कुछ रुजू करो, तुम्हारे लिए मैंने तो बेहतर मौका ढूंढा हुआ है। लेकिन वो बेहतर मौका के पीछे वो इसी भी पीछे पड़े रहते हैं, एक्सपांशन ढूंढ रहे होते हैं। तो पीपल फील सो स्ट्रॉन्ग, If people feel so strong being social पाया होता है, अगर आपको ये पता चल जाए कि you are like Allah, how strong would you feel?
और अगर आप इतने स्ट्रांग हो जाए, आपकी फेथ की ताकत इतना स्ट्रांग हो जाए, तो जो आपके मुल्क के हालात हैं, तो फिर किसको किस चीज की परवाह है? मतलब ये है वो डर जिसका कुरान कहता है अगर ये ईमान वाले होंगे तो एक बंदा कितनों पे हावी है? पहले था 20-20 पे, फिर कहा कि अगर नहीं ये कम ही है 10 पे होंगे, लेकिन ईमान हो तो सही, हो तो सही, एक 20 पे भारी है। अब एक 20 पे भारी होती तो दुनिया में तो उसी में बढ़ जाती है। अब उन्होंने इतना वीक हमें कर दिया है बिलीफ पे, ईमान पे, कि अब हम एक के बराबर भी नहीं रहे। Now if you tell all these facts of life, truths of life, एक आदमी जिसकी सेल्फ एस्टीम की नीड है, आप मुझे बताएं कि आप अगर जाके किसी ह्यूमन बीइंग के आगे टैग करें, what it does to your self esteem, बताएं? साइकोलॉजिस्ट बहुत बुरी फीलिंग होती है, बहुत बुरी। यू फील लाइक अ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल। क्या मेरी बात क्या है? अल्लाह जानता था, इसलिए उसने आपको हर जगह झुकने से मना किया है कि विद एवरी टाइम यू आस्क फॉर समथिंग यू विल डू इट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ एस्टीम। सो यू डोंट आस्क एनीथिंग टू एनीवन। और इस पे हदीस है कि एक जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा-ए-किराम को पता नहीं क्या कह दिया, ये किसी को भी नहीं पता, कि वक्त आया कि जब सहाबा-ए-किराम में से कोई घोड़े की उस पर बैठे होते थे ऊपर और हाथ से चाबक छूट जाता था, तो साथ खड़े हुए बंदे थे ये नहीं कहते थे कि चाबक पकड़ा दो, वो खुद उतरते थे और चाबक उठाते थे। पता नहीं क्या काम है, नहीं कर पाओ। और हमारे घरों में तो हालत ये है कि पहले माँ, फिर बीवी, फिर बच्चे, बस सारा दिन आज रिसर्च करें ना, कागज पे लिखें और जाके आप आज ये रिसर्च करना शुरू करें कि आपके घर में आपके वालिद साहब आपकी अम्मी को रोज कितनी दफा बात करते हैं। पानी पकाओ, क्या करना, खाना ले लो, बर्तन लगा लो, बर्तन डालो, कपड़े ठीक किए, कपड़े धो दो, टीवी ऊंचा कर दो, नोट पकड़ाना, बेटा ये कर दो, कैसे ठीक कर दो, कपड़े ठीक कर दो, तो फिर आपके वालिद साहब की सेल्फ एस्टीम किधर होगी? तो ये सिंपल सा बात बोला है ज्यादा एनहांस करता कि वो इगोइस्टिक हो जाते हैं। जिस शख्स की को पता था वो कौन है? देखिए आपकी फिजिकल पेट है ना, पेट की एक नीड है। क्या नीड है? खाना का। तो आप क्या करेंगे? किसी और से लेंगे। अगर मांगने से नहीं मिलता तो क्या करेंगे? चुराना शुरू कर देंगे, बिकॉज़ द नीड इज देयर एंड इट मस्ट बी सर्व्ड। So the same thing, exactly the same thing, I also think applies when it comes to respect level. Respect is a basic need. And if you don't respect yourself for who you are and your self-image about yourself, then because it is a need and it has to be served, then people will start serving it externally. How? By asking others to give them, to show them respect. मैं बोला तुम खड़े क्यों नहीं हुए? तुमने ये कहा, तुमने वो कहा, लेकिन जिनको ये पता है वो कौन है, because they know who they are and the work they have done. मेरे पास जरूर को पता था वो कौन है, तो वो जो यू और जो कूड़ा फेंकती रहती थी उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। नो जस्ट इमेजिन कि आपका कोई मिनिस्टर गुजरा या उसमें कोई कूड़ा फेंक दे, वो इतने दूर होते हैं कि बड़ा फेंकेंगे। चले अपने ऑफिस में किसी की बात करें। नो इतनी ये इगोइस्टिक जो एटीट्यूड है नाप कुरान के या जनाब अथॉरिटी का मिसयूज, ये उसी वजह से है कि we are empty from inside and we can only fulfill ourselves or take care of our needs by filling our vessel, empty vessel of respect, by knowing who you are, where do you stand, how good you are fulfilling the role which Allah has bestowed on you, by making you the vicegerent कि आप में से अच्छा खलीफा कौन है।
जिसको पता है कि वो अल्लाह के आगे क्या कर रहा है और वो अल्लाह की क्लोज है, उसको ज्यादा कर दुनिया को फूको मेरे ऊपर, पत्थर मारो, जो मर्जी करो, आई नो हु आई एम। अल्हम्दुलिल्लाह, it is not you who have to decide how good or bad I am. It is he who knows where I stand, and I only report to him. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसको अप्लाई कीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है ये। जी आप उसके सर ये फीडबैक का जो कांसेप्ट है साइकोलॉजी कि ह्यूमन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है फीडबैक पे, राइट, वन गिव्स एंड द अदर टेक्स और द अदर गिव्स एंड फर्स्ट टेक्स। क्या इसमें फिर ये चीजें नहीं आती है? अभी आप जो कह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान में रखें कि हमारा हम जो कर रहे हैं उसकी अल्लाह के नजदीक क्या अहमियत है, वो बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग ये नहीं होती है वो, और फीडबैक हमारे इस्लाम से रिलेट भी किया हुआ है और उसके देता है, तो ये है फीडबैक। लेकिन याद रखिए आईने का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? आईने अपना होता है, आईना झूठ नहीं बोलता, आईना के इमोशंस नहीं है, आईना बाइस नहीं हो सकता, आईना जजमेंट नहीं देता, आईना कंक्लूड नहीं कर सकता। आईना शो एग्जैक्टली हाउ इट इज विदाउट जजिंग इट। इतनी डेप्थ है इन हदीसों के ऊपर, छोड़ दीजिए इन किताबों को। अगर आपसे भी एक एक हदीस को पकड़ के सारी जिंदगी गुजार छोड़े, उसको रिजल्ट करते हैं, इसके मायने में निकलते हैं, दैट शुड बी सफिशिएंट। उस हदीस के मायने निकालते ही सारी किताबें आप पढ़िए, इसके मायने क्या है? व्हाई द वर्ड आईना, द मिरर हैज बीन यूज्ड। और तो क्वेश्चन ये है कि व्हेन वी आर गिविंग फीडबैक, आर वी गिविंग फीडबैक एग्जैक्टली द मिरर विल गिव फीडबैक? No, we always become biased. We use our own पैमाना to give feedback and we always judge it, the behavior. कैसे? ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने गलत किया, ये तो फीडबैक देने का तरीका है। हमें तो फीडबैक दिया हुआ सैंडविच। You talk about the good aspect first, then you give the filling, then you also talk about the consequences of the improvement, and that is required for the motivation of the person. यार तुम इतने अच्छे टीचर हो, इतने अच्छे टीचर हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये कर लें तो मेरा ख्याल है यू कैन बिकम मच मोर फेवरेट टीचर, blah blah blah, and I think if I said something out very special, बस इतना ख्याल दीजिए, and that is it. तो उसका तरीका है ना, तो वो तरीके से रखते हैं, लेकिन हम उसको अपने बेंचमार्क से हम कहते हैं तुमने ये गलत किया, तुमने ये ठीक किया, तुमने वो क्यों किया। बिहेवियर को नरेट करें, फीडबैक ये कहता है कि जब तुम वहां से चलते हो जाकर तुमने मुझे मेरे माँ बाप के सामने जब मैं बोल रही थी इंटरप्ट किया, इससे मुझे बहुत बुरा लगा। यह है फीडबैक देने का तरीका। ये नहीं तुम तो हो ही जा रहे, तुम तो हो ही काम कर, तुमने ये किया, तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हारी गाली नहीं करते। दिस इज नॉट वेयर टू गिव इन फीडबैक। एंड आई थिंक मेबी वी शुड हैव पीपल टू एडवाइस मी के बारे में प्री मैरिज ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करो, काउंसलिंग ऑफ कपल्स, हाउ टू टॉक टू ईच अदर, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीस वर्ड्स, बिकॉज़ द डिक्शनरी, ह्यूमन डिक्शनरी ऑन फीलिंग इट इज एन इन्विटेशन टू यू टू से द बेस्ट। तो जो सच है वो कह दो, लेकिन हदीस आपको बता रही है, कुरान ने भी कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको खुशरो बनाया, अगर आप सख्त को होते तो लोग आपको छोड़ देते। इट मीन्स कि सेइंग द ट्रुथ इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल, बट यू हैव टू फाइंड द बेस्ट इन द मैनर्स एंड द बेस्ट इन द मीन्स टू से व्हाट इज राइट। बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन आदाब के साथ, बेहतरीन वक्त के ऊपर बात कीजिए। आप अक्सर आप नेगेटिव बात कहते नहीं थे, और जब कहा करते थे आप पढ़िए, आप हदीस पढ़िए, आपको पता चलता है कि आपने जब गलत बात कहनी होती थी 90 दिन मौके के ऊपर, तो आपके सिर्फ चेहरे के तासुरात से पता चल जाता था कि आप ये बात समझिए, आपको गलत बात या नेगेटिव किसी को फीलिंग्स कॉल करना इतना बुरा लगता था। और अगर आप किसी को कोई बात कहना चाहते थे, आप थर्ड पार्टी की लैंग्वेज में कहते थे। आज आपने अपने अब्बू को कहना, अब्बू आप ये सिगरेट का डब्बा सिगरेट क्यों बात फेंकते हैं गाड़ी से, तो आप अब्बू को ना आप कहें अब्बू आपको पता नहीं लोगों को क्या हो गया, जिसको देखो गाड़ी से शीशा खोल के सिगरेट बात में कितना बुरा लगता होगा उनको बच्चों को।
तरह हमने बात की कि दूसरों को करेक्ट करने के लिए हमारे साथ तो स्टूडेंट्स होते हैं, कोई गलती करें या सही से टीचर को विश ना करें, तो हमें तो सिखाना होता है और एक दफा प्यार से, दूसरी दफा प्यार, तीसरी दफा सख्ती करनी पड़ती है। ओके, तो अब इस सिलसिले में हम क्या करें? इसका जवाब जैसे कुरान कहता है। कुरान कहता है आपको जो पहला लफ्ज़ है ना, हमें सिखाना होता है। कुरान ने आपको सिखाने की जिम्मेदारी नहीं दी। कुरान ने आपको हक बात कहने की जिम्मेदारी दी, सच बात कहने की जिम्मेदारी दी, तलकीन की जिम्मेदारी दी, तबलीग की जिम्मेदारी दी, किसी के बिहेवियर को मेंट करने की जिम्मेदारी आपको नहीं दी। हत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, या रसूलुल्लाह आपका काम हक बात को बयान कर देना था, आपको हमने इनके ऊपर दरोगा बना के नहीं भेजा। यू आर नॉट एन फोर्सर, क्योंकि अगर अल्लाह कहते हैं उसको हिदायत है, जिसको हिदायत मिलेगी उसको दुनिया जहां के खुदा देंगे। और हुक्म ने बता भी दिया कि जिनके कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके दिल हैं, दिल का काम नहीं करते, कान हैं सुनते नहीं, आंखें हैं देखती नहीं, इनके दिलों को अल्लाह ने बंद कर दिया, तो ये नहीं खुलेगा जब तक वो बिगाड़ बना के खोलेंगे। इट मीन कि आवर जॉब इज टू से टू कीप अवर ट्राइंग, बट रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट व्हिच वी आर अचीविंग, वी डोंट हैव टू फोर्स। हम उसको अपनी बना लेते हैं कि अच्छा मैं भी उसको छोड़ना है, ना बदल भी छोड़ूंगा। शादी के बाद सारी जिंदगी मियाँ बीवी को बदलने की, बीवी खावत को बदलने की कोशिश करती 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 दोनों कब्र में चले जाते हैं। दोनों कोई किसी को नहीं बदल सकता। बदलेगा तो वो जो बदलना चाहेगा, क्यों? बेशक अल्लाह नहीं बदलता। माँ के कॉमन किसी कौम की, किसी फर्द की, किसी ग्रोह की, किसी अदारे की हालत को हत्ता जब तक के युगैयो वो खुद ना बदले, माँ बयान फोसे हो जो उसके नफ्स में, जो उसके अंदर है। तो आपको किसने जिम्मेदारी थी लोगों को बदले? आपको क्या है कि बदलेगा तो वो जो पहले खुद बदलना चाहेगा। हमारा काम तो है जस्ट टू मेक श्योर कि जब कोई बदलना चाह रहा हो उसको ये पता हो सही और गलत क्या है। The book should be there, the message should be there. जब टाइम उसको आएगा वो खुद आपको बताएगा, टीचर आप बड़ी अच्छी बातें करती थी, आज आई डिसाइडेड टू बैक टू स्पेंड सम मोर टाइम विद यू। और सेकंडली, एज अ टीचर यू शुड मेक योरसेल्फ रोल मॉडल। Until and unless your students consider you as a role model, they will never ever come to you for guidance and counseling. They will never do so. So thank you very much. एक को बदलेंगे तो बिहेवियर में चेंज आएगी. इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, राइट? It will take time. So if we are working for a client and with students, with other people, so what is a shortcut one sentence? I want to, because of your experience, कि क्या एक चीज है जिसके थ्रू हम इसको शॉर्टकट वे में अचीव? Well, I think you can always, उसके लिए एक तरीका हम करते हैं, लेकिन वो भी हम beliefs को बदलने का तरीका करते हैं to make it much easier for people to change belief. उसके कई मेथोडोलॉजीज हैं, लर्निंग एक मेथोडोलॉजी है, हमने हमारी चेंज मैनेजमेंट की किताब में इसको डिफरेंट नाम दिए गए हैं, एम्पिरिकल रिसर्च है, लोगों को फॉर एग्जाम्पल बिलीफ सिस्टम में भी स्टैंडिंग ऑन सीढ़ी नंबर 7 हियर, ये सीढ़ी नंबर 1 है, ये सीढ़ी नंबर 7 है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बिलीफ, द डिफरेंस बिटवीन द बिलीफ इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस। If you want to, और दुनिया के हर आर्गुमेंट और हर लड़ाई और हर डिफरेंस के पीछे ही है। इसका मतलब ये है, what you can see standing at सीढ़ी नंबर 7, you are expecting this person who is standing at सीढ़ी नंबर 1 to see the same thing, which is not, I think, which is either not wise and not practical. क्या आप मैं 40 साल की उम्र में जो सीख रहा हूँ अपने 10 साल के बच्चे या 12 के बच्चे करते हो तो तुम्हें भी वही सीखना चाहिए। हाँ, if I really want to accelerate the process, do it quickly, then I have to work hard, try to bring this child up there somewhere quickly, because if I leave him or her unattended, it might take him much longer to reach here. So all I have to do is expose him to those books, to those experiences, to those knowledge bases, to those people, to those stories, to those ayat, to those movies which has created that knowledge into
try to bridge up the gap. But फिर भी रिजल्ट इज नॉट इन माई हैंड। जिस दिन उसकी ऑफर आएगी वो ये सफर जो मैंने 20 साल में तय किया है वो 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में कर देगा। तो उसका लॉजिकल आंसर ये है कि शॉर्ट दे फाइंड समवन बीइंग बेटर, कि यार ही इज टू गुड टू बी ट्रू। क्या बात है यार, असल में उनके अंदर एक बता रहा होता है यार मैं किधर खड़ा हूं, ये किधर खड़ा है। अब आप उसको बजाय के खुद ऊपर जाने की कोशिश करें, सामने तो उसको नीचे ले आए कि ऐसे ही ड्रामेबाज ज्यादा है। उसको अपने कट अंग्रेजी कहते हैं पीपल लाइक टू कट डाउन अदर पीपल टू देयर साइज। आप उस गैप को ब्रिज कीजिए, ठेका मत लीजिए, दरोगा मत बनिए, do the job, expose them to the knowledge, rationalism पैदा कीजिए, क्योंकि याद रखिए हर शख्स बाय फितरत, हर शख्स बाय फितरत, ये कानून कुदरत है, वो लालची है। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूं, इकबाल ने बहुत प्यार का जवाब दिया है, मेरा नहीं बनता तो ना बन। जब आप बच्चों को ये कहते हैं बेटा तुम ये करो तो ये ना करो, और पूछता क्यों, मैं कहता हूं क्योंकि मैंने कहा, you can never achieve a change in the behavior. Why do I do something for you? What? You told, she was one of my students in change management class, she is doing the same job and you told me. So basically इसका जवाब ये है कि आपने क्या करना है, आपने उसके बिलीफ को चेंज करना है। और कैसे करना है जी, कि बेटा इट इज नॉट मी, आई विल कीप ऑन लविंग यू द वे आई डू इवन टुडे, बट बेटा दिस इज नो गुड फॉर यू। अगर तुम उसे ये ना कहो नमाज पढ़ो, उसे बताए नमाज क्यों पढ़े, क्योंकि बाय फितरत वो सेल्फिश है। आपकी बातों में उसे सेल्फ इंटरेस्ट नजर ही नहीं आता, वो करता नहीं। आपकी बातों में उसे सेल्फ इंटरेस्ट नजर आ जाए तो वो करना शुरू कर देगा। सेल्फ इंटरेस्ट कैसे उसको नजर आए, एजुकेट योरसेल्फ एंड देन ट्राई आल्सो टू एजुकेट हिम। एक बच्चा उसका बिहेवियर है, रात को जागता है, सुबह लेट उठता है, और आई कैन डू दिस, ट्राई टू कलेक्ट द रिसर्च अवेलेबल, उसको बताओ कि बेटा जो रात को सोते हैं, लेट सुबह लेट जाते हैं, उनकी नींद पे, उनकी सेहत पे, उनकी स्किन पे, उनके खाने पे, डाइजेशन सिस्टम पे क्या क्या नुकसान हैं। और अगर वो अकल वाला है, पागल नहीं है, रैशनल बीइंग है, तो खुद ऐसा करना चाहिए। लेकिन आप डायरेक्ट उसको कहें कि आई एम आस्किंग इट इज नॉट गुड, लोग माइंड करते हैं, बुरा लगेगा, लोग माइंड करते हैं तो उनका प्रॉब्लम, मेरा तो नहीं है। कि यार someone is watching, then it is his problem, or someone is watching me. तो my problem is my problem. तो आप मुझे जो बताना चाहते हो बताएं कि what would it give to me if I change, and what do I miss out if I don't change? Then I will change. So it means reward and punishment is definitely. जी बिल्कुल है, ये इस्लाम ने इसको बशीर नज़ीर के नाम से कह दिया। Pain and pleasure is always there. That is also one of the methodology which we use to bring change, by giving people an exercise. Okay, write down the behavior which you want to change on the top of it, and list down all the good things. इसको हम कहते हैं PPP। कुछ लोग इसलिए मेहनत करेंगे कि रिवॉर्ड से तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती, लेकिन अगर मैंने ना मेहनत की तो बिजली भाग जाएगी, घर छूट जाएगा, ये घर वो बैंक में वापस ले लेंगे, तो नजीर वो नजीर उनको काम करता, जिंदा काम करता है। तो पेरेंट्स पेरेंट्स कहती है if you want to change this kind of change in the head, and now आप take person okay, now also write the same things. No change will occur as long as the pleasure will be more than the pain. जिससे वो गए ऐसे होगा खुद ही चेंज आ जाएगी। कोई आदत ले लीजिए, तो सोशल प्रॉब्लम ले लीजिए, पीपल आर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट अवेयर ऑफ द पेन, उनको सजा का पता ही नहीं, सजा का but now let's go to the Institute of Cardiology. Let's get your lungs x-rayed.
and see what you have inside. Let's see what is it giving to you. Let's see what happened to people who've been smoking for the last 30 years. पेन बढ़ा रहे हैं, पेन बढ़ा रहे हैं, पेन बढ़ा रहे हैं. जब पेन बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली बिहेवियर चेंज हो जाएगा. अगर वो मोटिव्स को देखना चाहते हैं प्योरली फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? किस चीज पे? मोटिव्स के लिए? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? You have to believe on what you are wanting others to believe from the core of your heart. मुझे वो पूछते हैं, what you tell me, I've been listening to this from my father, from my grandfather, from my teachers, from my auntie, uncle, for the last so many years. But the impact which I had after listening to you was marvelous. Why? I don't teach until unless I believe and I practice. I don't prepare notes. Many a time I just सिर्फ उसी वजह मुझे महीना दिन से दिमाग में आती है. आई एम बिलीवर. आई डोंट टीच. कुरान कहते हैं मोमनो ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं. हमारे साथ में से 90% ऐसे हैं जो पढ़ा कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं. अल्लाह उनके बाद में कोई किसी किस्म की उनमें असर ही नहीं है. बिकॉज आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी आंखों की चमक बदल जाती है, एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है. इफ यू बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग एंड देन यू विल ओपन अ बुक एवरी टाइम. अच्छा ऐसे जवाब दूंगी कब बताऊंगा आपको. यू से बिकॉज यू हैव सो मच एक्सपीरियंस टू बेस योर टू बेस द आंसर, टू गेट द आंसर फॉर द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड. सो बिलीव इन व्हाट यू आर टीचिंग. Strengthen your own belief system and also try to tell others about the belief. How can we do that? Belief को कैसे strong कर सकते हैं? Again, making people aware, exposing them to those things which will strengthen their belief. जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल दी है कि सिगरेट की कॉस्ट है, you did the belief, उनको हफ्ता ले जाए, एक्सरे दिखाएं, रिसर्च स्टडीज दिखाएं, लोगों से मिलवाएं. These are methodology which we use to strengthen the belief. इसी तरीके से आपने किसी को अल्लाह के ऊपर फेथ दिलवाना है, आप उनको मेरे जैसे लोगों से मिलवाएं. आप स्टार्ट नहीं किया, आगे आपको अल्लाह में फेथ नहीं करेगा ना. आपको कैसे करेगा? जिन लोगों का फेथ है, उनकी कामयाबी है, उनसे मिलवाएं, उनको दिखाएं कि look at this person what he used to be, look at this person what he used to be. You think that there is absolutely no relation of success with the family background? No, I will tell you what relationship it has with the family background. 99.9% of the people who are successful to the limits, they came from a modest family background. There is absolutely no scope and no backing from the family. लोगों का मिक्स तो ये है कि जब अमीर होने के लिए you have to be a part of a mean family. एक सेकंड के अंदर आप ये बिलीफ शैटर कर सकते हैं बाय एक्सपोजिंग देम टू द राइट एंड द रीसेंट आगे. ये रिसर्च कौन सी है? ये आज मुसलमान कौन सबसे पुअर है रिसर्च के अंदर, जबकि पूरा कुरान आपको तरकीब कर रहा है रिसर्च की. मोमिन की निशानी बताई जाती है कि ये वो नहीं है जो आंखें बंद करके गाय की तरह पीछे पीछे किसी के चल पड़ता है. ये रिसर्च करता है. और हमारे लिए रिसर्च इतनी मुश्किल है कि हम ये आसान समझते हैं कि मौलवी साहब बताए, पूछो मौलवी साहब घर में बच्ची की शादी है तो बताए कैसे क्या करो. आसान है, जैसे कि मैं खुद कहूँ कि नबी पाक के जमाने में आपकी बच्ची की शादी तो आपने क्या किया, रिसर्च नहीं करेंगे कि साहबा कराम कैसे करते थे, क्या करते थे. आसान नहीं करिए, इधर देख लो उधर देख लो, मौलवी साहब से पूछ लो क्या क्या कर लें. इसीलिए पूरी सोसाइटी मिस और